Well, good morning to everyone, and welcome to the Utthan session today. So, we are starting with a new topic today. So, it will be our contribution in a situation. And for this topic, we have Sister Kavita who's joined us. I will quickly take a moment to introduce Sister to all of us. So, DK Kavita is a Raj Yoga meditation teacher, and she is presently offering her services at the Brahma Kumari's Meditation Center in Borivali. She has been practicing Raj Yoga meditation since the last 27 years and has dedicated her life for the spiritual upliftment of humanity. She is an orator and adept meditator. She shares spiritual insights and inspires people for self development through creative modes like talks and workshops, interactive sessions, and a lot more. She offers her services to take ahead the activities of the transport wing of the Raj Yoga Education and Research Foundation, which is a sister foundation to the Brahma Kumaris. Didi, on behalf of everyone today, I'd like to welcome you to Utthan. Over to you now, and Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti and good morning to one and all present. And I hope we are here for a new beginning in the new year with a lot of newness and a lot of looking forward to a lot of positive attitude within us. Because when we move ahead with positivity, it helps us. It helps us to really fuel our actions, to fuel our communications, and to really work for not just achievements. Yes, that is a part of the process, but also to work for inner fulfillment. So let us now, at the beginning, take one moment to reflect within as we make a new beginning, because this inner reflection will really help us to kind of absorb the sharings that will come up in the next 45 minutes. So I request all to take a pause if you're doing, and take a pause even in the thinking. I will guide you with some positive thoughts, and these thoughts will help us to draw our attention, focus it to the present, and with this, we will continue. So, kindly be seated comfortably in your chair. If you're holding on to things, mobiles, pens, for now, for a few minutes at the beginning, request you to please place them aside. Seated comfortably, I look within. If required, you may close your eyes. If you're comfortable with open eyes, it's okay, but you could also close your eyes to withdraw easier and faster. On the screen of the mind, I reflect on the thoughts which are going on. I read every thought as I would read an announcement on a screen. I gently detach myself from the scenes of my life. I bring in consciously a shift in my awareness in the present moment. I shift from being an actor to being an observer. As I detach, there's a sense of inner calm which naturally emerges. A sweet energy which makes me feel at home with myself. This is the most powerful moment I have experienced this morning. This connects me to my state of power. I am a powerful being.
I choose to be calm in my interactions today. With enhanced energy and a sense of rejuvenation, I return back to the physical arena as I have the mindset to look forward to my day ahead. Gently return back to physical awareness. In case you've closed your eyes, you may kindly open your eyes and welcome back. This was an inner journey, and I'm sure each one of us has practiced affirmations, meditation time and again. But every journey is unique in itself. And with every journey, with every meditation experience, we just reconnect to the inner source of latent energy within. Because otherwise life can become very mechanical. हम सब ने कई बार एक्सपीरियंस भी किया होगा कि जिंदगी कितनी बिजी होती जा रही है और बिजी होने के साथ साथ ज्यादा ही वी आर काइंड ऑफ मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजिनल फीलिंग्स ऑफ लाइफ, ऑफ हैप्पीनेस, ऑफ पीस, जिसको हम बहुत ज्यादा पसंद करते हैं. एक बार एक ग्रुप से मैं एड्रेस कर रही थी. इट वाज अ ग्रुप ऑफ यंग एनर्जेटिक यूथ. एंड जब हमने उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक, जीवन क्या है, so people had different answers. Someone said life is a challenge, someone said life is an opportunity, a game, so on and so forth. कई बार हमने भी ऐसे थॉट्स आपने सुने होंगे. बट वन पर्सन केम अप विथ अ वेरी इंटरेस्टिंग आंसर. उनसे जब पूछा जीवन क्या है, तो ही सेड, सिस्टर, ट्रैफिक और वर्क के से बचा हुआ जो समय है ना, वही जीवन है. So being so much busy in traffic and so much occupied with the work office, और ट्रैफिक से जो बचा हुआ जीवन है, जो समय है, वो जीवन है. एंड उनका रिस्पॉन्स इतना इंटरेस्टिंग था. इट रियली ट्रिगर्ड थॉट विद इन मी ऑल्सो. और ये सोचने की बात है फ्रेंड्स कि क्या सचमुच सिर्फ वही जीवन है? क्या हमारा वर्क, उसको हम एंजॉय करें, क्या वो जीवन नहीं है? क्या हमारी जो इवन इन द ट्रैफिक, आई अंडरस्टैंड ट्रैफिक इज अ चैलेंज एंड इट बिकम्स क्वाइट रिक्वायर्स क्वाइट सम एबिलिटी कि हम ट्रैफिक में अपने आप को कोप कर सके. बट द ब्यूटी इज कि इट इज अ नोन चैलेंज. ये कोई अननोन चैलेंज नहीं है. तो क्या हम उस समय पर, इफ वी आर लाइक कि हम ट्रैवल करेंगे बट इट विल बी दी एट द कॉस्ट ऑफ माय पीस ऑफ माइंड, इट विल बी एट द कॉस्ट ऑफ माय स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, तो क्या हम ये इसको ठीक समझते हैं? हमारी जीवन उतनी छोटी नहीं कर सकते हैं. वी हैव टू एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ, बी इट ट्रैफिक, बी इट वर्क, बी इट द चैलेंजेस दैट लाइफ ब्रिंग्स फॉर्थ टू अस. बिकॉज इट इज इन दीज चैलेंजेस कि जब हम ग्रो करते हैं, जब हम अपने आप को डेवलप करते हैं. अब मान लीजिए, बिकॉज ये ट्रैफिक की बात निकली है एंड टुडे वी आर हियर टू अंडरस्टैंड अबाउट सिचुएशंस एंड रिस्पॉन्सेज टू दी सिचुएशंस, कि व्हाट इज माय कंट्रीब्यूशन टू अ स्पेसिफिक सिचुएशन. तो हम देख लेते हैं कि हाउ माइंडसेट अफेक्ट्स एनी सिचुएशन. हमें पता होता है कि हम ट्रैफिक हम जाएंगे, सो प्रोबेबली देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि ट्रैफिक आएगा. इन द ट्रैफिक we will spend more time than otherwise it would have been. लेकिन क्या ये सिचुएशन आपको लगता है कि इरिटेटिंग है? Is the situation by itself very irritating? क्या हम ये कह सकते हैं कि it is an irritating? So some people are really honest और वो कहते हैं कि हाँ, ट्रैफिक में तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है. Recently, I met a person. She was a senior person heading an educational institution. And जब उनसे बात कर रहे थे, तो with all the achievements of the institution, then she came back to one-on-one discussion and the daily challenges of life that a working professional today faces. And उसमें वो शेयर करने लगी कि उनका जो ड्राइवर है, she said that he is a very calm person. एज भी उनकी अभी बड़ी हुई है because he's been with her long years. So she's saying over the years I have seen him very calm, very receptive, कुछ भी होता है. But then she had an admission to share that recently जब वो देखते हैं तो ट्रैफिक में she was surprised to say कि even he loses temper.
तो वो कहते हैं ओवर द इयर्स मैंने उनको इतना स्टेबल देखा एंड नाउ आई सी हिम लूजिंग टेम्पर। तो द क्वेश्चन वी कम बैक टू इज, क्या हमको लगता है कि सचमुच में ट्रैफिक इरिटेटिंग है, या देयर कैन बी चॉइसेस? क्या कहेंगे, डू वी हैव अ चॉइस? पीपल से हाँ ट्रैफिक बहुत इरिटेटिंग है, ट्रैफिक में हमें गुस्सा होता आ जाता है। तो हमें यहाँ जाकर के देखना है कि इफ ट्रैफिक इज इरिटेटिंग, जैसे कि अगर एसी का टेम्परेचर मान लीजिए 18 डिग्रीज है, इट विल बी कोल्ड फॉर वन एंड ऑल। अगर बाहर बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ द हीट टेम्परेचर इज 40 44, इट विल अफेक्ट वन एंड ऑल। अगर ट्रैफिक बाय इटसेल्फ इरिटेटिंग है, देन इट शुड हैव द सेम इफेक्ट ऑन एवरी पर्सन। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसी सिचुएशन भले है, बट इट इज नॉट इरिटेटिंग इन इक्वल अमाउंट टू वन एंड ऑल। नॉट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हु इज स्टक इन ट्रैफिक गेट्स इरिटेटेड। जिससे ही हमें पता चलता है कि जब भले हम उस सिचुएशन में है, तो वी हैव अ चॉइस टू रिस्पॉन्ड कि भाई अगर हम उस सिचुएशन में भले हैं, बट डू वी हैव एन ऑप्शन टू इरिटेशन? क्या केवल ट्रैफिक इरिटेटिंग है, कि क्या कोई हम रिस्पॉन्सिबल है कि उस सिचुएशन में हमारी रिस्पॉन्स कैसी है? क्या हो सकता है? इज इट पॉसिबल दैट वी गो थ्रू अ डिफिकल्ट सिचुएशन, अ डेली सिचुएशन रादर लाइक अ ट्रैफिक जैम, और even if it's not a jam, it's a stubborn traffic, सॉरी, और स्टबर्न ट्रैफिक के बावजूद भी आपको क्या लगता है कि पॉसिबल है हम इरिटेट ना हो? क्या कहेंगे? गिव इट अ थॉट। Is it possible? Yeah, someone is replying, yes, it is possible कि हो सकता है हम ना इरिटेट हो, कि पॉसिबल है। एनी अदर थॉट्स? कि क्या लगता है, बस इरिटेट होना ही है, वी हैव नो चॉइस, है ना? Depends on the situation. Depends on the purpose. See, we see depends on the situation, depends on the purpose, but we have to come down to the fact that it depends upon my way of thinking and it depends on my way of perception. इट इज नॉट द सिचुएशन आउटसाइड। ये हमें बहुत ब्यूटी सीखनी है लाइफ जीने की, फ्रेंड्स। अगर आपने ध्यान से जो इनिशियल हमने कमेंट्री ली, द गाइडेड मेडिटेशन दैट वी वेंट थ्रू, अगर आपने उसको ध्यान से एक्सपीरियंस किया होगा, वी स्पोक अबाउट टू इम्पोर्टेंट वर्ड्स देयर। वन, माई सेल्फ द एक्टर, एंड सेकेंड, माई सेल्फ द ऑब्जर्वर। नाउ इन दोनों रोल्स को प्ले करने की स्किल हमें सीखनी है, एंड वॉट एवर लाइफ ब्रिंग्स टू अस, बी इट सक्सेस, बी इट फेलियर, बी इट ट्रैफिक, बी इट अ वंडरफुल न्यू फ्रेशली कंस्ट्रक्टेड रोड विच अलाउज द व्हीकल्स टू मूव वेरी स्मूथली, हमें दोनों सिचुएशंस में अपनी स्टेट ऑफ माइंड को देखना है। हमारा क्या होता है, वी गिव एम्फोसिस टू वन, वी प्ले द रोल ऑफ द एक्टर, but we have lost the skill to also play the role of the observer. Why this is important, हमें पहले उसको समझना है। It will not only relate to one situation of traffic, but it will relate to several other situations of our life. When I play the actor, as an actor अगर हम देखते हैं तो हमारा फोकस अपने आप पर होता है, जो होना भी चाहिए। Because when I am playing my role, मुझे देखना है that I have to play my role to the best of its ability. Whatever role I am playing, I have to play it to my best. Even when I'm driving my vehicle, if I am driving my vehicle, I have to play the role of a driver very well. If I'm riding my bike, I have to play that role well. If I'm operating my computer, उस रोल को मुझे अच्छे से प्ले करना है। मैं किसी से बात कर रही हूँ, कोई डिसीजन ले रही हूँ, मुझे अपना हर रोल बहुत अच्छी तरीके से टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज प्ले करना है। सो वन रोल दैट वी प्ले इज द रोल ऑफ एन एक्टर, और इसमें हम बहुत ज्यादा एंग्रॉस हो जाते हैं। Simultaneously, it is also important for us to play the role of an observer, जिसको हम भूल जाते हैं because we put our entire focus of attention on being the actor. Now, why is observer important?
ऑब्जर्वर इसीलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज जहां एक एक्टर मैं हूं जो अपना रोल प्ले कर रही हूं, एट द सेम पॉइंट इन टाइम देर आर सो मेनी डिफरेंट एक्टर्स आर ऑल्सो प्लेइंग देयर रोल्स. I have to create a space where I can observe the challenges and I can even empathize with people, have that empathy for other people. और उस empathy को जगाने के लिए I need to also play the role of a detached observer. This is a skill. हम एक्टर में तो बहुत ज्यादा एंगेज हो जाते हैं, इतना ज्यादा एंगेज हो जाते हैं कि ऑब्जर्वर के लिए हम टाइम एंड स्पेस फाइंड आउट नहीं करते हैं. एंड इट इज गुड फॉर यू ऑल कि आप ऐसे अर्ली मॉर्निंग में वेलनेस प्रोग्राम्स में ज्वाइन करते हैं. इट इज द टाइम दैट आई गिव टू इट एंड नॉट जस्ट द टाइम, द इंटरेस्ट दैट आई गिव टू इट, दैट विल डिटर्मिन कि मैं कितना अपनी लाइफ में इस बैलेंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूं. द रोल ऑफ एक्टर बट ऑल्सो द ऑब्जर्वर. बिकॉज अगर केवल एक्टर रहे देन आई विल परसीव ऑल अदर रोल्स ओनली थ्रू माई लेंस, थ्रू द लेंस ऑफ माई रोल. But at a time, once I become an observer, I can see all other roles as they are. I can create the space जहां मैं उनकी problems को समझ सकूं, जहां मैं उनकी state of mind को समझ सकूं. Maybe they are coming through a difficult morning, maybe they are coming through some physical pain. हम नहीं पता होता अगर हम सिर्फ actor consciousness में हैं. So the beauty of life is playing both roles and becoming skilled at both the roles, an actor and an observer. कब उसी ट्रैफिक की सिचुएशन में चले जाते हैं, किसी से मान लीजिए कोई मिस्टेक हो गई, उस वजह से ट्रैफिक है. हो सकता है किसी की व्हीकल ब्रेकडाउन, सबसे ज्यादा तो उसको खुद को हिट हुआ है. But then that vehicle breakdown, which is just, you can say, a stroke of fortune or misfortune, as ever we, whichever ways we want to put it. अब उनको भी हिट हुआ है, but then that has become a cause for many other people. लेकिन जब हम बिल्कुल एक्टर कॉन्शियसनेस हो जाते हैं तो हम दूसरे फैक्टर्स के प्रति कंसिडरेट नहीं होते हैं. देन मुझे लगेगा मेरी तो एग्जाम है, मेरी तो इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मुझे तो फ्लाइट पकड़ना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. Again, in this moment, I have to understand, मुझे प्रॉब्लम का हिस्सा बनना है या मुझे सोल्यूशन का हिस्सा बनना है. एंड प्रॉब्लम केवल वो डिफाइंड प्रॉब्लम नहीं है कि देयर इज ट्रैफिक एंड देयर इज केओस. ट्रैफिक एंड केओस एक एक्सप्रेशन है, एक वाइब्रेशन है सराउंडिंग द प्लेस. आई कैन कंट्रीब्यूट टू bringing the intensity to a state of calm, or I can contribute to increase the chaotic vibration of the scenario. What is visible to the eye is only physical, but then there is an energy field which is running around. And at each and every point in time, जैसे हम बहुत अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, हमारे फैमिली में भी विश टू मेक अ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन. अगर सोशल नेटवर्क है तो वहां भी हम चाहेंगे आई शुड हैव सम मीनिंगफुल प्रेजेंस इन माय सोशल नेटवर्क. एंड जैसे फिजिकली हम जानते हैं कि विथ व्हाट आई स्पीक, विथ व्हाट आई डू, आई एम हैविंग माय प्रेजेंस बीइंग नोटिस्ड. My presence by itself is influencing any and each and every situation. तो आज हमें इतना जरूर प्लान करना है, इतना जरूर एफर्म करना है अपने आप से that I have to make a positive contribution at the level of my thoughts to each and every situation. What is the quality of energy that I give out to a situation? जैसे किसी भी फ्रूट को ले लेते हैं, वो फ्रूट को जैसे हम प्रेस करते हैं, वी प्रेस एन ऑरेंज, व्हाट वी गेट इज ऑरेंज जूस. इफ वी प्रेस अ लेमन, व्हाट वी गेट इज लेमन जूस. जो उसके अंदर है वो तब बाहर निकलता है जब उस पर प्रेशर डाला जाता है. ये जो सिचुएशंस है, दे आर ऑल डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज, आई वुड से, इन डिस्गाइज. बी इट सक्सेस, be it failure, whatever.
It is an opportunity in disguise for me to gauge कि what is the energy that I am contributing to my world and to the world at this point. Do I want to make a meaningful contribution? क्या मुझे positive thoughts, positive energy radiate करनी है? And when I make the choice as yes, I am equipped to do so. So भले हम ट्रैफिक की सिचुएशन को बार बार ले लेते हैं कि मेरे मन की शक्ति, अगर मैंने अपने मन को ऐसे कंडीशन कर दिया, मेरे मन को हमने प्रोग्राम कर दिया कि ठीक है, मेरी भले एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, बट मैं पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने वाली हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू क्रिएट थॉट्स विच आर गोइंग टू स्ट्रेंथन द प्रॉब्लम. I will create those thoughts which will strengthen the solution, and the solution begins with me. अगर मैंने चैलेंजिंग सिचुएशन में मेरा स्टेट ऑफ माइंड काम बना के रख लिया, I have won more than 50% of the battle. हमने केवल सक्सेस को फिजिकल पैरामीटर्स में या टैंजिबल पैरामीटर्स में मेजर करना सीख लिया है. I had a one-on-one meeting with Leander Pace, and जब उनसे हम मिल रहे थे, so very beautiful expression जो उन्होंने हमसे शेयर किया, and बाद में मैंने देखा renowned writer has written it, but he shared about people only see about medals and about contests and championships when they think of Wimbledon. But he shared कि मैं आपको वो बात बताता हूँ जो सेंटर कोर्ट विंबलडन पर लिखी हुई है, and probably not many people would be knowing about it. And I said, please share, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? And he said, center court Wimbledon, when we enter, when we leave, we see there's a statement written, consider yourself to be a true champion. You are a true champion only when you meet victory and defeat and treat both the imposters alike. And then he came to share with me that actually when we start playing, I started playing tennis, he shared, because I enjoyed the game. He says someone may enjoy cricket, someone may enjoy football, someone may enjoy badminton, and I just happen to enjoy playing tennis. Then he says, as we play the game, we get so much engrossed in the game, वो realize भी कर रहे थे. Even when we get so much engrossed in the game, then victory and defeats have their influence. Take it to any human being. Many of you may be enjoying playing any sport, a sport of any kind. Indoor sport, carom, table tennis, other outdoor sports. हम क्यों खेलते हैं? We play because we enjoy playing. सबसे पहले तो इसीलिए प्ले करना शुरू करते क्योंकि हमें मजा आता है. बट धीरे धीरे अगर वो हमारा विक्ट्री और डिफीट के फॉर्मूला तक पिन पॉइंट हो जाता है that I only enjoy winning, the person who is not equipped himself to lose will never enjoy the game. और जैसे स्पोर्ट्स में ये समझना हमारे लिए इजी हो गया है, लेकिन जब हमारी अपनी लाइफ के सिचुएशन में आता है तो फिर उसको एक्सेप्ट करना हमारे लिए डिफिकल्ट होता कि लाइफ में भला कोई प्रॉब्लम कैसे आ सकती है, लाइफ में कोई सिचुएशन कैसे आ सकती है. That will add to the beauty of our journey called life. What is important is my state of being in victory and defeat, in challenge and in smooth going situations. आज एक चीज हमें अपने आप को बार बार एम्फसिस दे करके पक्की करानी है. We have to pledge, so to say, to ourselves that let me make a positive situation at the level of my thought, at the level of my energy field, in whatever situation I am and with amidst whomsoever I am. फिर आप देखोगे कि you will find personal growth even in the adverse situations of your life because I have contributed positively.
So one is my world and one is the world. दी वर्ल्ड में हमने कहा वी हैव टू बी एन ऑब्जर्वर बिकॉज उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं. So many people involved out there, so much of environment involved out there, and so many. It's in a never-ending list. But मैं एक्टर कहाँ हूँ? My world. और मैं अपनी वर्ल्ड को कैसे क्रिएट करता हूँ या करती हूँ? Do I want to go to work? Or do I have to go to work? It's a soft introspection. Do I just want to sit inside my home or I want to explore the world outside? कोविड डेज हम सबने काफी challenges के साथ spend किए and many people found it very difficult to stay within the confines of their home. हम बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन जब बाहर जाना चाहते हैं ट्रैफिक आता है तो हम अपसेट हो जाते हैं, तो हम इरिटेट हो जाते हैं और फिर भी हम बाहर जाना चाहते हैं. तो क्या ऐसा इक्वेशन हमने बनाया है कि मैं इरिटेट होना चाहती हूँ? Because we know it's a shared space, roads are shared space, and with increased population density, vehicular density, movements हर समय पर उतना स्मूथ नहीं होंगे. So भले मूवमेंट वहां स्मूथ नहीं है, मुझे यहाँ जो एनर्जी रेडिएट करनी है उसको मुझे स्मूथ मीनिंग टू से स्टेबल बना करके रखना है. क्या थॉट्स हो सकते हैं कि आई कैन लीव अ लिटिल अर्ली? मुझे पता है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ द रोड नॉट बीइंग सो ओपन, तो लेट मी लीव बिफोर टाइम. तो ये प्रैक्टिकल सोल्यूशन हो जाता है. आई लीव 10 minutes इन एडवांस. अगर मुझे वहां जल्दी पहुंचना हो गया तो भी इट इज फाइन, बट आई एम रिलीविंग माई सेल्फ ऑफ द pressure that I could feel if I am short on time and then I find traffic on the road. If there is a red signal coming my way, अगेन एक थॉट होता है, अच्छा मुझे ही सिग्नल लगना था. अरे इतनी लंबी ड्यूरेशन का कोई सिग्नल होता भी है क्या? अरे थोड़ा सा अगर तेज चलते या आगे वाला तेज चलता तो मैं तो सिग्नल पार कर देता. अननेसेसरी रुकना है. सी व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ एनर्जी दैट आई एम रेडिएटिंग. लेट मी रिप्लेस दिस कि मुझे इसकी जगह पर क्या करना है. ठीक है, गाड़ी को हॉल्ट दिया, मैं अपने माइंड को भी एक पॉज दे देती. ट्राई इट आउट. एंड जैसे ही हम एक अंदर ग्लिम्स करते हैं, हम सोच लेते हैं कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव, वो जो रेड सिग्नल विच अदरवाइज कुड हैव बीन अ सोर्स ऑफ प्रेशर, वो सोर्स ऑफ प्रेशर नहीं होता है, क्योंकि अब मैंने अपनी थॉट को चेंज कर दिया है. और जब अपनी थॉट को चेंज कर दिया तो जो मेरी स्टेट ऑफ माइंड है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होने की जगह पर वो बहुत ज्यादा काम हो जाती है. सो द फाइन अपॉर्चुनिटीज जो हमें अपने आप को फाइन ट्यून करने के लिए लाइफ देती है, वो लाइफ हमें उस चीज का मजा लेना है. हमें उसके बारे में शिकायत नहीं करनी है. लेट एक्सेप्टेंस कम. जैसे बारिश होती है तो हम क्या करते हैं? बारिश के बारे में कंप्लेंट करते हैं. हम छतरी लेकर निकलते हैं या रेनकोट लेकर निकलते हैं. बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो रादर देन कंप्लेनिंग अबाउट द हीट, आज हमने क्या यूज किया? वी हैव पुट ऑन एयर कंडीशनर्स और हम वहां पर सेफ अपने आप को प्राप्त कर लेते हैं. हमने सॉल्यूशंस बनाए. वी हैव चोजन टू स्टे इन अ मेट्रो सिटी और विजिट अ मेट्रो सिटी एज इट मे बी, वो हमारी चॉइस है. अगर वहां रहकर हमें हर बार इरिटेट होना है तो हैव वी मेड इरिटेशन आवर चॉइस? लेट मी आस्क माई सेल्फ. किसी स्पेस पर रहना भी है. देयर आर रिमोट एरियाज जहां पर शायद उतनी ट्रैफिक नहीं होगी, बट जो लाइफ में मुझे अपने आप को एक्सप्रेस करना है, शायद अपने आप को एक्सप्रेस करने की अपॉर्चुनिटी भी रिमोट लोकेशंस में हमारे पास नहीं होगी. एंड दैट इज व्हाई वी हैव चोजन कि आई वांट टू बी एक्टिव, आई वांट टू बी मोर कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी, सो लेट मी कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली. एंड कंट्रीब्यूट करने के लिए केवल कुछ अचीवमेंट्स वो मुझे सेंस ऑफ फुलफिलमेंट देंगी,
बट मेरी प्रेजेंस भी एक कंट्रीब्यूशन है। आपने देखा होगा कोई लीडर्स होते हैं और कोई मैनेजर्स होते हैं, एंड देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन अ लीडर एंड अ मैनेजर। मैनेजर इज अ पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर हो सकता है दैट पीपल मे नॉट वांट टू एक्चुअली फॉलो दैट पर्सन, पॉसिबिलिटी। लीडर maybe is not in a position of responsibility, but then there are people who want to be with him or be with her. अगर आप एक पोजीशन ऑफ लीडरशिप में है बट देर आर नो पीपल टू फॉलो यू, वांटिंग टू फॉलो यू, ये एक चेक पॉइंट है। एंड जितना जितना हम अपने खुद के साथ कंफर्टेबल होते जाएंगे, वो हमारी पॉजिटिव फील्ड बनाते जाएंगे, उतना उतना वी विल बिकम अ लीडर इन द फील्ड ऑफ फील्ड्स। कि जो मेरी वाइब है, जो मेरी एनर्जी है, जो मेरी ऑरा है, दैट ऑटोमेटिकली अलाउज पीपल टू कम क्लोज एंड टू वर्क इन यूनाइसन एंड वी मूव फॉरवर्ड टुगेदर। तो ये छोटे छोटे जो मेरे एक्सप्रेशंस, वो डेली सिचुएशंस होते हैं, उसमें मेरे क्या रिस्पॉन्स बने, उसमें मेरी क्या फील्ड बनी है, उससे डिटरमिन होता है कि मेरे बड़े डिसीजंस जो होते हैं या जो बड़े रूप से विजिबल होते हैं वो क्या है। सो मीनिंग टू से आप अपनी ऑफिस की एडमिनिस्ट्रेटिव चेयर पर बैठ करके कैसे वर्क करते हैं लोग देखने के लिए आएंगे, लेकिन अपनी कार की सीट पर कैसे बैठे हैं जब आप ट्रैफिक में हैं, शायद बहुत लोग वो देखने के लिए नहीं आएंगे। बट आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, उस सिचुएशन में आप अपने वर्ल्ड को, माई वर्ल्ड, अपनी फील्ड को, अपनी एनर्जी फील्ड को कैसे बनाए रखते हैं, दैट इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस द वे यू आर गोइंग टू प्रेजेंट योर सेल्फ ऑन योर अदर सीट। बिकॉज एनर्जी तो वही है ना, मैं ही उसको कैरी करती हूँ, मैं ही उसको रेडिएट करती हूँ, मैं ही वो एनर्जी फील्ड लेकर कार की सीट पर बैठी हूँ और अपनी ऑफिस चेयर पर बैठी हूँ। आई एम द सेम पर्सन। अगर यहां मैंने बहुत केओटिक फील जनरेट कर ली जब मैं कार में बैठी थी कि ये शहर तो रहने लायक ही नहीं है, या तो ये मेरे साथ ही ऐसे होता है, आज मेरा कितना लॉस हो जाएगा, इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी मैं पहुंच नहीं पाई, ये सिग्नल इतना लंबा, इस सिग्नल को ही निकलना था क्या, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर ये हम एनर्जी फील्ड क्रिएट कर रहे हैं जब हम ड्राइव कर रहे हैं, इस एनर्जी फील्ड के साथ जब हम वहां गए, तो वो एनर्जी फील्ड हमें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करने में हिंडर करती है। फिर हमें लगता है मेरी वर्किंग एफिशिएंसी, या फिर औरों को लगता है कि इनके साथ कार्य करना मुश्किल है। सो मे बी जो आउटर वर्ल्ड है उस पर हमारा पूरा कंट्रोल नहीं हो सकता, जिसको हम सिचुएशन कहते हैं, जैसे ट्रैफिक है, जैसे फेलियर है, जैसे लॉस ऑफ जॉब है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती है। लेकिन भले सिचुएशन मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरी स्टेट ऑफ माइंड वो मेरे कंट्रोल में जरूर है। जैसे कोविड के समय पर भी हमने क्या किया, हमने मास्क पहने, हमने सोशल डिस्टेंसिंग किया, हमने वर्क फ्रॉम होम किया, हम लोगों से ऑनलाइन ज्यादा से ज्यादा मिलते गए, इवन अस एट द सेंटर, बिकॉज पीपल वुडंट विजिट द प्लेस। हमने ऑनलाइन सेशंस इतने ज्यादा कोविड के टाइम लिए जो ना उसके पहले कभी लिए थे, ना अभी उतने ज्यादा ऑनलाइन होते हैं कंपेयर टू दोज डेज। So we adapted ourselves to this situation and we moved out of it. कई बार हमारे जीवन की डेली चैलेंजेस में हम ये रियलाइजेशन ही भूल जाते हैं कि हमें इसमें अडेप्ट होना है, हमें इसको एक्सेप्ट करना है, और मेरा जो कंट्रीब्यूशन हो वो मेरा कंट्रीब्यूशन सिर्फ पॉजिटिव ही होना चाहिए, क्योंकि हमने चूज किया है व्हीकल्स से, प्राइवेट व्हीकल्स को ज्यादा से ज्यादा यूज करना। हमने चूज किया है कि हमें एक मेट्रो शहर में रहना है। हमने चूज किया है कि एक वर्किंग प्रोफेशनल बन करके हमें रहना है। हमने देखा कि यहाँ हमारे पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, हमारा एक्सप्रेशन स्कोप यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर फैसिलिटीज ज्यादा है, सो इट्स ओके।
ये हर बार हर रोज कभी न कभी किसी न किसी के साथ होता रहता है. I will navigate my way through it. I will make the necessary communication when I am in the midst of traffic. इंतजाम कर लूंगी, इंतजार नहीं. कंप्लेंट भी नहीं और अफवाहें तो बिल्कुल नहीं. कंप्लेंट्स बिल्कुल नहीं. एक्सेप्टेंस. इन्फॉर्म कर दीजिए. आजकल तो हमारे पास बहुत सारे गैजेट्स हैं, टूल्स हैं. कुछ म्यूजिक का आनंद ही ले लीजिए, कुछ कम्युनिकेशन कर लीजिए. व्हाट आर दी ऑल्टरनेटिव्स? अब ऑल्टरनेटिव सोच ही लीजिए. मान लीजिए ट्रैवल प्लान चेंज हो रहा है तो क्या पॉसिबिलिटी ऑल्टरनेटिव्स की है, ये है वो है. लुक आउट. व्हाई? बिकॉज अल्टीमेटली दी undercurrent of life is that we should enjoy each and every moment of our existence, and we should radiate our original energy to each and every situation. I have to keep a very happy world. My world should be a very happy world on inside, and this then manifests as a very happy world outside. पर ये इनर कनेक्शंस के लिए हमें लगता है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है. इतना कुछ वर्क करने के लिए आप कहेंगे इट इज गुड इन अ क्लासरूम एनवायरनमेंट, प्रैक्टिकल ये है ही नहीं. लेकिन आप इसको ट्राई करके देख लीजिएगा. ट्रैफिक वही रहेगा, बट जब हमने उसको अच्छी तरीके से उसमें अपने स्टेट ऑफ माइंड को बना करके रखा है, so you will not feel irritated or agitated even when you are out of it. You will feel, yes, I passed a litmus test of my life as I navigated through it. हमें एक सिस्टर का पता है, जब भी ट्रैफिक में होते थे and if there is a certain kind of a block, she would not be seated in the car. She would move out and she would see what is possible, and if possible, she would, like a traffic police, try to help the people navigate out of the traffic in her to the best of her abilities. कई बार हम उनसे कहते भी थे शायद ये required नहीं है, so she said, let me do what I can do to the best of my abilities. एक बार she was unwell and she was initially hospitalized, but because her health was getting little needed more attention, critical हो रहा था, तो उनको एक हॉस्पिटल से दूसरी हॉस्पिटल शिफ्ट करना था. एंड एक एम्बुलेंस में उनको ट्रांसफर कर रहे थे, एंड वी वर ऑल लाइक होपिंग दैट ट्रैफिक के थ्रू नेविगेट होकर के वो इन टाइम फॉर प्रॉपर अटेंशन दूसरी हॉस्पिटल पहुंच जाए. एंड इट सो हैपेंड दैट शी रीच्ड इन टाइम, और वहां पर जो अटेंशन चाहिए था वो उनको मिल गया. आफ्टरवर्ड्स जिस ब्रदर ने उस सिस्टर को अकम्पनी किया था एम्बुलेंस में, आई हैपन टू मीट हिम एंड आई आस्क्ड हिम कि हाउ वाज द रोड, हाउ वाज द जर्नी इन द एम्बुलेंस, बिकॉज बहुत ज्यादा रश भी नहीं कर सकते थे बट इन टाइम पहुंचना भी था. तो उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बात शेयर की. ही सेड, आई हैड एन इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन कि एक जंक्शन पे सचमुच ट्रैफिक था एंड वहां पर कोई एक सिटीजन लाइक एन एंजल, एक फरिश्ता बनकर, एक देवदूत बनकर वो अपनी कार से निकला और उसने इस तरीके से व्हीकल्स को नेविगेट किया कि हमारी एम्बुलेंस वहां से पार कर गई, अदरवाइज वी वुड हैव लॉस्ट टाइम. एंड दैट ब्रदर फर्दर कंटिन्यूड कि यू नो दिस सिस्टर आल्सो यूज्ड टू डू दैट व्हेन शी वुड गेट स्टक इन अ ट्रैफिक. सो जब उसको जरूरत थी उस टाइम पर उसको असिस्टेंस मिली. So it is about the energy that I am giving out to the world, the karma that I am performing out in the world. It's not only about complaining for what is, but it is about contributing for what I am. तो इसीलिए the state of being an actor, but also developing the skill of being an observer हमें मदद करती है कि हम हमेशा देखें कि there is a larger picture beyond my limited vision, and I have to give a positive contribution in whatever situation I am through the level of my elevated thoughts. तो आइए for a few minutes again, हमने जो सुना है उसको हमें embody करना है. So I invite all of you to take a short break again and let's have a collective guided meditation. आप जो भी कर रहे हैं, I request you to take a pause, sit relaxed on your chair. Let us create
one of the few most powerful thoughts now. Gently withdraw your attention from all that's being done outside. Take a deep breath. Breathe in peace. And as you breathe out, any concerns or tensions are gently breathed out. I am a responsible being. I choose to contribute positively to both success and failure, to both a situation of challenge as equally to a situation which is very convenient. As I withdraw from the sounds, the noises outside, I retreat within to a state of power. I am a being of power. I have the strength. I have the inner treasures of peace and positivity. And it is my endeavor to share this energy with the world outside. Share this authentic energy with one and all. And I feel the need to be higher on my energy levels. I think about the Supreme Being, God, all powerful and all peaceful. As I think of this energy, His love empowers me, makes me belong to Him, and my energy levels rise higher in connection with the One. I am more energetic to radiate positive vibrations to each and every situation. With this, I gently come back, but keep the connection with God stable. Gently open your eyes in case you've closed them. Welcome back and wishing each one of you a wonderful day and a successful year ahead. Wish that each one stays an actor and also practices being an observer so that we radiate only and only positive energy to each and every situation life brings across us. Thank you. Om Shanti. Thank you, Didi. Thank you, first of all, for coming to Uthan and taking the session and for delivering such a wonderful session today. And thank you, everybody else, for attending. We will meet next week for the session 2. Have a nice day. Om Shanti, and thank you. Om Shanti.